गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो भी जब ये लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद डायरेक्ट टेक्स्ट एंड बैक विद द लास्ट पार्ट for appeal and revision. I hope you have watched my two parts of appeal and revision, part 1, part 2, and they were beneficial for you. I have tried each and every example, each and every point that was possible from my extent, वो मैं क्या करूँ that I should cover. ठीक है। नाउ दिस इज एन एलिमेंट्री पार्ट, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। क्यों नहीं जाने वाली हूँ? बिकॉज ये मैं आपको एक बार भी बताऊंगी तो आपको उतना ही समझ में आएगा, दूसरी बार भी बताऊंगी तो उतना ही समझ में आएगा। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। Covering section number 281. Covering section number 281. What is section number 281? बस ध्यान से सुनना because I am not going to repeat these sections. These are so easy. Easy भी हैं और साथ में सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुन लो, एक बार में ही चीज़ों को ख़त्म करो। ठीक है, तो चलो। Section 281 is certain transfers are void. It is about what? Certain transfer to be void. Certain transfer to be void. This is about 281. Now, what does this section states that during pendency of any proceeding, if any proceeding is pending, ठीक है, तो during pendency of any proceeding, pendency of any proceeding, okay, or even after completion, or after completion, or after completion, if ठीक है, अगर क्या है, पेंडेंसी है टू प्रोसीडिंग की, या फिर कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है, कंप्लीशन भी हो गया है किसी हमारी प्रोसीडिंग का, लेकिन फिर भी इफ एसएससी क्रिएट्स, अगर एसएससी क्या करता है, इफ एसएससी क्रिएट्स, एसएससी creates, what SSC creates, if SSC creates any charge or part with or transfer the possession of any asset, if during this time he creates what, he creates any charge, he parts with, he creates any charge, he parts with, or transfer possession, or transfer possession of this asset, or transfers the possession of this asset, then it will be deemed to be void. It will be what? Deemed to be void. ड्यूरिंग द पेंडेंसी, पेंडेंसी चल रही है प्रोसीडिंग की, या फिर प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई लेकिन अभी लाइबिलिटी वगैरह है आपकी, एंड व्हाट द एसएससी इज डूइंग, ही इज व्हाट, creating any charge, or he parts with or transfer the possession of the asset. In that case, this charge, this partition, or this transfer is deemed void. It is what? It is deemed void. It is what? It is deemed to be void. Okay. Now, this asset, ये जो असेट ट्रांसफ़र की, इसका ट्रांसफ़र वॉइड तब माना जाएगा बिकॉज ये असेट आपकी रखी ही क्यों गई थी, ये असेट आपकी इसलिए रखी गई थी अगेंस्ट, सपोज करो आपके ये जो असेट रखने का रीज़न था, इट वाज अगेंस्ट द क्लेम विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन पेबल बाय एसएससी, बिकॉज ये जो असेट रखी थी, इट वाज अगेंस्ट द क्लेम, दिस असेट वाज अगेंस्ट, इट वाज अगेंस्ट व्हाट, इट वाज अगेंस्ट द क्लेम इन रिस्पेक्ट टू, अगेंस्ट द क्लेम इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू टैक्स, in respect to interest, in respect to penalty, or fine payable, or any fine payable by assessee, right? तो इसलिए ये डीम टू बी वॉइड माना जाएगा।
However, however, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे असेट की, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट असेट, बट दिस असेट वुड नॉट इंक्लूड वन थिंग, दिस असेट विल नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, दिस असेट विल नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? ओके मैम। नाउ व्हेन दिस विल नॉट डीम्ड टू बी वॉइड, अब कब इसे वॉइड नहीं माना जाएगा, इवन दो इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, बट देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड, एंड द केस इज when it is transferred for adequate consideration, when it was first is it was transferred for adequate consideration. It was transferred for what? For adequate consideration, and he was not having the notice of pendency, and no notice of pendency was available to this person, no notice of pendency, okay, pendency proceeding, pendency of proceeding, okay? Or second, he was not having the notice, he was not having the notice of such taxes on monies that is remaining payable, or he was having no notice, he was not having notice about, this is not second number, okay, इसके ही और में है, और no notice about such tax money remaining payable, okay? Now second, if he has transferred with the previous permission, if he has transferred with previous permission of AO, AO की परमिशन से उसने ट्रांसफर किया है, तो दिस विल नॉट बी वॉइड, दिस विल नॉट बी वॉइड। तो ये है हमारा 281। आई होप आपको समझ में आया है, इजी है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज इट्स एन ईजी वन। बस अब एक चीज़ और इसमें जो याद रखने की है, जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि दिस सेक्शन अप्लाइज इफ टैक्स एंड, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, दिस सेक्शन, ये सेक्शन अप्लाई होगा, दिस सेक्शन अप्लाई इफ, दिस सेक्शन अप्लाई इफ, कौन सा सेक्शन, ये 281 सेक्शन अप्लाई इफ टैक्स और other sum payable, tax or other sum that is payable exceed 5,000 plus asset की जो वैल्यू है, asset value, and the value of asset is more than 10,000, that means asset की वैल्यू अगर 10,000 से कम है, उसका ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, दैट ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, एंड इफ योर टैक्स रिकवरी जो है वो 5,000 से कम है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। So this is 281. I hope it's clear to you. Now covering next section is 281B, that is provisional attachment. Covering section number 281B. What is 281B? This is provisional attachment to protect the interest of revenue in certain cases. It is about what? प्रोविजनल असेसमेंट। लग रहा है कि ज़्यादा टैक्स पे करना है इस सामने वाले को, लाइबिलिटीज़ की ज़्यादा निकलने वाली है, तो देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का। तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ property. Why? To protect the interest of revenue, but obvious to protect what? Interest of revenue. ठीक है। Here AO is of opinion. Here the opinion किसका होना चाहिए? Here opinion is of AO. तो assessing officer is of opinion that during the pendency of any proceeding, किसी भी तरह की proceeding, any proceeding is pending. Any proceeding is what? Pending during the pendency of any proceeding.
or under assessment reassessment of income that has escaped from assessment, that is section 147 going on. चाहे कोई पेंडेंसी हो, किसी भी प्रोसीडिंग की पेंडेंसी हो या फिर सेक्शन 147 का अभी क्या चल रहा है, इनकम एस्केपमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, इफ एओ to protect the interest of revenue, if AO to protect what, to protect interest of revenue, AO to protect what, interest of revenue, in order to protect what, interest of revenue by written order, AO can do what, written order देके, यहाँ पे सिर्फ आप मैं लिख नहीं रही हूँ, आप समझ लो क्योंकि easy सी चीज़ें हैं, unnecessary हमारा थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। देखो क्या होता है, पेंडेंसी है किसी प्रोसीडिंग की या फिर सेक्शन 147 चल रहा है, देयर इज पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग और सेक्शन 147 दैट इज असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ द इनकम दैट हैज एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट, इट्स गोइंग ऑन एंड एओ को लगता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, एओ इज ऑफ ओपिनियन कि क्या प्रोटेक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें प्रोटेक्ट करना है, तो एओ क्या करेंगे, AO by written order, AO will give what? AO have to give written order देंगे एंड रिटर्न ऑर्डर देने के पहले AO को खुद को परमिशन लेनी होगी, प्रीवियस परमिशन किसकी लेनी होगी, प्रायर परमिशन लेनी होगी ऑफ, प्रायर परमिशन किसकी लेंगे AO, प्रायर परमिशन ऑफ CIT और CCIT, AO हैज़ टू टेक द प्रीवियस परमिशन ऑफ CIT CCIT, ठीक है। एंड इन दिस रिटर्न ऑर्डर व्हाट ही विल से, इन दिस रिटर्न ऑर्डर ही विल अटैच्ड एनी प्रॉपर्टी ऑफ असेसी प्रोविजनली, रिटर्न ऑर्डर के थ्रू अटैच कर लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ असेसी, ही विल अटैच व्हाट, ही विल अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी प्रोविजनली। तो चाहे पेंडेंसी किसी भी प्रोसीडिंग की हो, सेक्शन 147 हो, इफ AO is of the opinion that in order to protect the interest of revenue, he may by written order with the prior permission of CIT CCIT he may attach any property of the assessee provisionally, और ये जो अटैचमेंट है ये अटैचमेंट रहेगा अप टू 6 मंथ, दिस अटैचमेंट विल इफेक्टिव, ये अटैचमेंट का कब तक इफेक्ट रहेगा, ये नोटिस का कब तक इफेक्ट रहेगा, तो ये इफेक्टिव रहेगा अप टू 6 मंथ, अप टू व्हाट, अप टू 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ, up to 6 months from date of order of attachment, from the date of order of attachment, from the date of order of attachment, 6 months from the date of order of attachment that is passed by AO, AO ने क्या किया, जिस दिन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास किया उस डेट से, डेट ऑफ ऑर्डर, उस डेट से हमें 6 मंथ काउंट करने हैं, तब तक इफेक्टिव रहेगा। CCIT और CIT कैन एक्सटेंड दिस, CIT कैन एक्सटेंड इट इफ देयर आर रीजनेबल रीजंस, अगर रीज़न है, सही रीज़न है तो दे कैन एक्सटेंड दिस, बट एक्सटेंशन हो या कुछ भी हो, अगर एक्सटेंशन हो रहा है तब भी रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एक्सटेंशन का रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर एक्सटेंशन, रीज़न जो है एक्सटेंशन का रीज़न मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, and this extension in any case the extension cannot be what, अगर extension हो भी रहा है तो not in any case exceed, यहाँ पे कितना नहीं बढ़ सकता, not in any case exceed, not in any case exceed 2 years, not in any case exceed 2 years or 60 days, point to be noted, 60 days after date of order of assessment or reassessment, date of order of assessment or reassessment। यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इफेक्टिव कब तक रहेगा, 6 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वाज पास्ड बाय AO, एक्सटेंशन इज पॉसिबल बाय रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग एंड दिस एक्सटेंशन कैनॉट गो बियॉन्ड 2 years, इट कैनॉट गो बियॉन्ड 2 years, और यहाँ से एक्सटेंशन 2 साल तक और हो सकता है या फिर और 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, या तो 2 years
या फिर असेसमेंट कंप्लीट हो गया, असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद 60 डेज तक का ही क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। असेसमेंट बाद में हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, और अगर 2 इयर्स हो रहा है तो 2 इयर्स के अकॉर्डिंग देख लो, मतलब विच एवर इज लेटर होना है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही प्रॉपर्टी को क्या किया, प्रॉपर्टी को अटैच किया, जैसे ही क्या किया, ये रही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैच किया, एसएससी आ जाता है, एंड एसएससी फर्निश बैंक गारंटी। एसएससी क्या देते हैं, एसएससी बैंक गारंटी देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो सिचुएशन, इफ द बैंक गारंटी इज अप टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक गारंटी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू तक है, इसकी सपोज 1 करोड़ फेयर मार्केट वैल्यू है, बैंक गारंटी भी अप टू, नॉट लेस देन, फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं है। सो बैंक गारंटी इज नॉट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, इट इज नॉट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, और इन केस इफ इट इज लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, इफ लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू होगी तब क्या होगा, बैंक गारंटी लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू, बैंक गारंटी नॉट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर यहाँ पे इफ इट इज लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू बट एओ इज सेटिस्फाइड कि ठीक है, जितनी गारंटी दी है वो क्या है, लाइबिलिटी कवर अप करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इफ एओ इज सेटिस्फाइड हियर, तो इन बोथ द केसेस एओ विल एक्सेप्ट द गारंटी, इन बोथ द केसेस एओ विल एक्सेप्ट गारंटी and he will revoke the attachment, he will accept guarantee and he will what, revoke the attachment। यहाँ तक बात समझ में आई, यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आई कि बैंक गारंटी दी जा सकती है, इफ इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इट इज लेस देन, सो इफ एओ इज सेटिस्फाइड दैट इट्स ओके, इट्स सफिशिएंट टू कवर अप द लायबिलिटी, तो वहाँ पे हमारा एओ बैंक गारंटी एक्सेप्ट करते हुए रिवोक करेंगे अटैचमेंट को, यस। लेकिन अब समझो मेरी बात कि ये असेट है, असेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे एओ को डाउट है, एओ इज हैविंग डाउट ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू, सो हेयर एओ कैन रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, हेयर द एओ कैन रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर को 142A में ही कैन रेफर, he can refer to valuation officer under 142A, and this valuation officer will submit the report, this valuation officer will do what, he will submit the report to AO, he will submit the report to whom, he will submit the report to AO within 30 days, within 30 days from the date of receipt of reference, within 30 days from date of receipt of रेफरेंस रिसीव होने के बाद 30 डेज में क्या दी जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी। अब इन केस अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए, वैल्यूएशन ऑफिसर विद इन 30 डेज विल इशू रिपोर्ट, तो ये जो अटैचमेंट है ये रिवोक कितने टाइम में होना चाहिए, बैंक गारंटी मिलने के बाद कितने दिन के अंदर ये अटैचमेंट रिवोक हो जाना चाहिए। तो इन केस अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास नहीं जाते हैं तो विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ बैंक गारंटी, बैंक गारंटी रिसीव होने से 15 डेज के अंदर रिवोक हो जाना चाहिए अटैचमेंट। बट अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हैं तो 30 डेज तो वैल्यूएशन ऑफिसर लेगा, उसके बाद 15 डेज के अंदर, मतलब टोटल 45 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए, अटैचमेंट रिवोक हो जाना चाहिए। विद इन 45 डेज द अटैचमेंट शुड बी रिवोक। इसका लॉजिक क्या है, 30 डेज तो यहाँ पे रिपोर्ट आने में लग जाएंगे, उसके बाद के जो 15 डेज नॉर्मली भी लगते हैं, तो देखो 45 डेज हो गए, तो यहाँ पे रिवोक होगा अटैचमेंट विद इन 45 डेज, इट विल रिवोक विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 45 डेज। यहाँ पे आया, यस मैम। नाउ सपोज व्हाट, नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन द एसएससी। अब क्या हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। बैंक गारंटी वगैरह आपको आ गया, यस मैम, बैंक गारंटी में 15 डेज कहाँ है, 45 डेज कहाँ है, ये सब आ गया। सपोज व्हाट, नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन एसएससी, ये एसएससी है, ऑन दिस एसएससी डिमांड नोटिस इज सर्व्ड, डिमांड नोटिस क्या कर दिया, डिमांड नोटिस इज सर्व्ड,
एसएससी है, एसएससी पे डिमांड नोटिस सर्व हो गया, लेकिन ये एसएससी क्या है, एसएससी फेल्स टू पे द डिमांड विद इन द टाइम लिमिट दैट हैज बीन गिवन इन नोटिस, ही फेल्स टू पे द डिमांड विद इन द टाइम लिमिट दैट वाज मेंशन्ड इन नोटिस, सो हियर व्हाट एओ विल डू, हियर एओ विल इवोक द गारंटी, गारंटी जो दी है उसको यूटिलाइज करके अपना क्या कर लेगा, लाइबिलिटी जितनी है एसएससी के ऊपर वो ले लेगा. So if the SSC fails to pay the demand within the time limit that has been given in the notice, in that case AO can evoke what he can evoke, bank guarantee. However, there are cases when this SSC will do what? SSC fails to renew the guarantee. गारंटी रिन्यू नहीं करता है एसएससी, या फिर न्यू बैंक गारंटी फर्निश नहीं कर रहा है. If the SSC fails to renew the bank guarantee or give new bank guarantee, या फिर amount released या फिर क्या है, रिन्यू नहीं कर रहा है या फिर नई बैंक गारंटी नहीं दे रहा है, तो इन केसेस में क्या होगा, एओ क्या करेगा, जब ये बैंक गारंटी एक्सपायर हो रही है, एक्सपायर होने के जस्ट 15 डेज पहले उसे क्या कर लेगा, इवोक कर लेगा. एओ क्या करेगा, बैंक गारंटी एक्सपायर होने के 15 डेज पहले क्या कर लेगा, उसे इवोक कर लेगा. क्या कर लेगा, उसे इवोक कर लेगा. ठीक है. अब अमाउंट जो भी बैंक गारंटी से रियलाइज हुआ है उसको सबसे पहले लाइबिलिटी से एडजस्ट किया जाएगा, और एक्स्ट्रा कुछ बैलेंस बचता है, अगर कुछ भी बैलेंस एक्स्ट्रा बचता है तो वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट इन द पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इन द ब्रांच ऑफ आरबीआई और इट्स सब्सिडी. प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पर्सनल अकाउंट में आरबीआई के ब्रांच में क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा. नाउ एक बार अगर समझ में आता है कि हाँ नाउ ये जो पैसा है अब ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ ये जो बचा हुआ पैसा है डिपॉजिट किया है, अब लगता है कि आगे ज़रूरत नहीं है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो ये गारंटी फिर क्या कर दी जाएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी. उसके बाद ये गारंटी क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे. सो बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि या तो बैंक गारंटी देगा, बैंक गारंटी दी तो हमने 15 डेज या 45 डेज में क्या करना है, इवोक करना है किसको, अटैचमेंट को. एससीसी के पास डिमांड नोटिस जाता है, नहीं पे करता है डिमांड को, तो एओ क्या करेंगे, बैंक गारंटी इवोक कर देंगे. अगर रिन्यू भी नहीं करता, नई बैंक गारंटी नहीं देता, तो एक्सपायरी के 15 डेज पहले ही से इवोक कर दिया जाएगा. जितना पैसा आया लाइबिलिटी से एडजस्ट करो, बचा हुआ पैसा प्रिंसिपल कमिश्नर के पर्सनल अकाउंट इन द आरबीआई में डिपॉजिट कर दो. उसके बाद लगता है कि इट इज़ नॉट नीडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो बचा हुआ पैसा जो है मतलब बची हुई बैंक गारंटी रिलीज कर दी जाएगी. This was your provisional attachment का section. This was what provisional attachment का section, that is 281B. charts already हैं इसके, तो अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में आपको इसके चार्ट मिल जाएंगे, इसीलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट सिर्फ समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. आई वॉन्ट टू स्टार्ट टुडे योर सर्च एंड सीजर. ठीक है, चलें आगे. यस मैम, बढ़ते हैं आगे. लास्ट इज सेक्शन 292BB. लास्ट इज अ सेक्शन 292BB. Notice is deemed to be valid in certain circumstances. Notice deemed to be valid. Notice what deemed to be valid in certain circumstances. Notice is deemed to be valid in certain circumstances. अब वो circumstances क्या हो सकते हैं? Assessee, this is an assessee. This assessee appeared in any proceeding. ये assessee किसी proceeding में आता है. This assessee appear in any proceeding. Okay. Or this assessee has cooperated in any inquiry of assessment, reassessment. Or he has what? He has cooperated in. He has what? He has cooperated in any inquiry of assessment, reassessment. Assessment, reassessment के inquiry में he has what? He has what? Cooperated. ठीक है. Now, once he has appeared in a proceeding or if he has cooperated, then अगर इस assessee को नोटिस जो इशू हुआ था,
ये असेसी को नोटिस जो इशू हुआ था, तो दिस असेसी कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्शन। सच नोटिस इज, ये जो भी नोटिस इस एसएससी को इशू हुआ था, सच नोटिस इज प्रीक्लूडेड, सच नोटिस इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्शन इन एनी प्रोसीडिंग और एनी इंक्वायरी दैट नोटिस वॉज। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते इस नोटिस पे कि दिस नोटिस वॉज नॉट सर्व्ड अपॉन हिम, वॉज नॉट सर्व्ड अपॉन हिम। यहाँ पे लिखा है सर्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये नोटिस सर्व नहीं हुआ। नोटिस इशू होना ज़रूरी है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि नोटिस सर्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, प्रोसीडिंग या फिर कोऑपरेट कर लिया, यहाँ पे प्रोसीडिंग में प्रेजेंट हो गई और यू कोऑपरेटेड, या फिर नॉट सर्व्ड इन टाइम और इट हैज़ नॉट बीन सर्व्ड इन टाइम, ये टाइमली सर्व नहीं हुआ, या फिर सर्व तो किया लेकिन सर्व इन improper manner. Point to be noted here, all the points are linked to serve, it's not linked to issue. ठीक है, तो सेक्शन 292 if you have cooperated or you have appeared in any proceeding, then this notice cannot be objected on following grounds, इन grounds पे आप object नहीं कर सकते। ठीक है, so these are three important section. Other than this, in the chart I have mentioned certain section जो आपको सिर्फ एक बार रीड करने हैं, तो आप वो चार्ट में देखना, उन सेक्शंस को एक बार आप रीड आउट कर लेना। दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एक बार पता होना चाहिए, दैट इज इट, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है उसमें। सो दिस कंप्लीट अर अपील एंड रिविजन चैप्टर, ये पूरा हमारा अपील रिविजन खत्म हुआ। We will be starting with search and seizure now, और search and seizure के बाद let me tell you 4 days I will not be uploading anything in DT because पहले मैं AMA का chapter number 2 complete करूँगी और उसके बाद we will be targeting international taxation. Yes, we will be targeting our international taxation, और international taxation के बाद जो आपका बचता है TDS, TCS, एडवांस टैक्स, एंड फिर हमारा बचता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। तो उसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बता देना, बट इतना मेरे तरफ से ए एनालिसिस जो होता है सब्जेक्ट का, तो ए चैप्टर्स एनालिसिस में जो आते हैं ABC एनालिसिस में ए वाली कैटेगरी के आई विल गिव यू ऑल। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कुछ और भी चाहिए तो यू कैन आस्क मी, बट पहले ए कैटेगरी ख़त्म होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो एंड समरी नोट्स बनाओ और साथ में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, यस मैम। तो चलो मिलते हैं, हम कब मिलते हैं, अब जल्दी से सर्च एंड सीजन में।